it was being advertised as a very technical session. So I see a little low attendance compared to the last time, but no problems. We are here to understand the campaigns on the marketplaces, particularly Amazon. Why I say Amazon is because Amazon gives much better data that you can actually kind of use and make some adjustments, maybe than a Flipkart would give. And also Flipkart campaigns are not very smooth, I have seen in the past. With Amazon, you can have some kind of understanding, and which understanding then you can take forward to the other platforms also where you are running the campaigns. So good morning, friends. My name is Manish Verma, and I represent Digicart India and Ecomically. So the agenda for today would be the optimizing components. We already took understanding various components of campaign report, but I'll again take you guys through that. So we are a DigiDesign group. So DigiDesign does digital marketing for over 100 plus brand owners, and plus we are Digicart India. We are selling now 20,000 units plus per month every month. And Ecomically is the one which I'm trying to promote here as a software as a service. It provides support, not only provides support to the group on technology for logistics, sales, and analytics, and we are also getting the analytics to the other e-commerce sellers, wherein they can just upload their reports on Amazon payment or Amazon tax reports, Flipkart payment and tax reports, and get very lucid and easy to understand things that can be used to understand where their business is going. And of course, then we have another D2C brand with the name of True Turtle, which we have also listed on e-commerce platform, and plus we have our own website by that name. So here are the team behind Digicart India. So we have 4 own managed warehouses and working through Amazon and Flipkart warehouses. The premium sellers with Amazon, platinum sellers with Flipkart. So this is what I did yesterday, last time when I took this session. So if you go to advertising and the campaign manager, you land up here. And when you land up here, this is the kind of report which I have taken for the lifetime. So you can see that the lifetime spends that we have done on Amazon as a platform is roughly around 81 lakhs. And against this 81 lakhs, we have generated a sales of about 12.7 crores at an ACOS of 6.4%. ACOS of 6.4% roughly means ROS of 15.62. So these are the terms that I explained. I explained the impressions by showing that whenever you are searching for any kind of a product and you see certain sponsored listings, so those are the impressions. So the impressions get counted. You do not get billed on impressions, but impressions, they do get counted. Basis those impressions, sometimes a customer is kind of is enticed to click that impression. So once that click is recorded, so you can see the number of clicks here. CTR is basically the clicks over the impressions. So in this case, 1147 divided by 4.75 lakhs becomes the CTR, which is 0.24%. So at the account level, you can see that I have a CTR of 0.64%. 0.64% CTR means that every 200 impressions of mine, or every, I think, just a moment, let me get this right for you. 128. Yeah, every 300 impressions of mine are generating 2 clicks. Okay, so every 300 impressions are generating 2 clicks. So this is what you can decipher out of this. And then of course is the spends. So what happens is that because we keep on changing the bidding, कई बार उसको हम ज़्यादा कर देते हैं, कई बार हम उसको कम कर देते हैं. तो कभी कोई क्लिक जो है हमारे पास मे बी 6.5 रुपीज की आ रही है, कभी कोई बार क्लिक जो है 7 रुपीज की आ रही है, कभी कोई 3 रुपीज की आ रही है. इट ऑल्सो डिपेंड्स जो कस्टमर ने सर्च टर्म टाइप किया है. कस्टमर ने जो सर्च टर्म टाइप किया है उससे आपका कौन सा कीवर्ड ट्रिगर हुआ है, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दैट. और उस टाइम पे कितने कॉम्पिटिटर्स आपके एग्रेसिवली बिडिंग कर रहे थे. सो ऑल दैट गेट्स काउंटेड इन वन क्लिक कि वो क्लिक आपको कितने की कॉस्ट करी. तो ऐसा करते 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 आपका एक टोटल नंबर ऑफ स्पेंड आ जाता है. तो इफ यू डिवाइड दी स्पेंड्स बाय द क्लिक्स, यू गेट व्हाट इज कॉल्ड अ सीपीसी, अ कॉस्ट पर क्लिक. So this becomes your average cost per click. And then of course you get number of orders.
उस पे आपकी सेल्स कितनी आती है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स का सेल्स इन टर्म्स ऑफ द टिकट साइज ऑफ द आइटम दैट यू आर हैविंग. And now these two very important parameters are there, the ACOS and the ROAS. So ACOS and ROS are more or less typically सेम चीज है. ACOS सिर्फ ये है कि भाई आपका कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग एज परसेंटेज ऑफ सेल्स कितना है. बिकॉज सम पीपल लाइक टू से कि भाई अगर मेरे को ग्रॉस मार्जिन मान लीजिए 30% है, तो उसमें मेरा सेल्स का जो स्पेंड है, एडवर्टाइजिंग का जो स्पेंड है वो कितना है. तो अगर किसी को बोलो जी 16% है, किसी को बोलो 7% है, तो उसको जल्दी समझ में आता है कि मैं कितना मार्जिन जो है अपना सेल्स के अंदर स्पेंड कर रहा हूँ. सो अगर आप देखेंगे हमारा कैंपेन लेवल पे 6.4% है, तो अगर हम 100 रुपए की सेल कर रहे हैं तो हमारा एडवर्टाइजिंग स्पेंड जो है वो 6.4% है. 6 रुपए 40 पैसे हमारा एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड हो रहा है. And believe me, on this also there is one more thing that you can apply, which is that ये जो भी आपको सामने टेबल दिख रही है, इट इज ओनली फॉर द इनऑर्गेनिक सेल, एज इन जो आपने एड से लाए हैं आप सेल. तो हमारे केस में क्या है कि हम एड से लगभग लगभग 1/3 सेल लाते हैं और ऑर्गेनिकली हम 2/3 सेल्स लाते हैं. तो अगर आप एक्चुअल मेरा कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट देखेंगे तो वो 6.4 डिवाइडेड बाई 3 रह जाता है, क्योंकि मैं सिर्फ 1/3 सेल ही इनऑर्गेनिक ला रहा हूँ, बाकी 2/3 सेल्स जो है मेरी ऑर्गेनिकली आ रही है. और वो ऑर्गेनिक आ रही है, उसके लिए भी मेरे को इनऑर्गेनिकली भी खर्चा करना पड़ता है, जिससे मैं एक कंपटीशन में बना रहा हूँ. एंड ROS इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ ACOS. तो अगर जैसे आपका ये 6.4% है, तो अगर आप इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 6.4% विच बिकम्स 15.62. इन अदर वर्ड्स, अगर मैंने 1 रुपया एडवर्टाइजिंग पे डाला तो मेरे को कितने रुपए की सेल आ रही है. सो ROS इज दिस. ACOS वाज एज अ परसेंटेज, मैं Amazon पे एडवर्टाइजिंग स्पेंड कितना कर रहा हूँ एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स. ROS है कि अगर मैंने 1 रुपया एडवर्टाइजिंग का डाला तो उसके अगेंस्ट मेरे को कितना मल्टीपल ऑफ सेल मिल रहा है. सो दे आर वन एंड द सेम थिंग, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. If my ACOS is 6.4%, my ROS is 1 by 6.4%, which is 15.62. कि अगर मैं 1 रुपया एडवर्टाइजिंग में डाल रहा हूँ तो मेरे को 15.6 रुपीज मिल रहे हैं. Any questions till now? Then we'll move forward. We have to go into little deep now. Okay, no questions. I'll move forward. So then I talked about how to take out the reports. I showed to people. So this today I am going to tell you how to adjust certain things. अगर ये सेशन इंटरेक्टिव रहा तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर नहीं रहा तो कोई बात नहीं. I'll try to do justice to this. So today I'm going to show you first 3 screens मैं आपको दिखा रहा हूँ. And these are the screens. हम लोग 3 portfolios handle कर रहे हैं. तो हम एज अ सेलर हम 3 पोर्टफोलियोज या 3 ब्रांड्स बेच रहे हैं और उन पे हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं. तो अगर आप देखेंगे कि हमने टोटल अभी तक, ये डेट रेंज दिस मंथ है, यानी 1 से लेकर 12 अगस्त, अभी 12 चालू ही हुआ है, तो ये सुबह का जैसे मैंने डेटा निकाला है. तो ऑलरेडी हम लोग 44 लाख इंप्रेशंस जनरेट कर चुके हैं फॉर दिस मंथ, which has resulted into 15,000 odd clicks. इसका मतलब है CTR 0.35% है, यानी 15,275 डिवाइडेड बाय 44 lakhs. CTR 0.35% है. सिंपल सी बात है कि 300 क्लिक पे 300 इंप्रेशन पे मेरा 1 क्लिक आ रहा है एज ऑफ नाउ ऑन अ पोर्टफोलियो लेवल, ऑन अ अकाउंट लेवल. स्पेंड्स मैं 86,000 कर चुका हूँ, मेरी CPC 5.65 है, ऑर्डर्स मेरे इतने हैं और सेल्स मेरी इस स्पेंड के अगेंस्ट 9 लाख रुपीस की हुई है. तो मेरी ACOS जो है 9.59 है और मेरा ROS 10 है. तो ये मैंने आपको दिखाया कि मेरे इस महीने के नंबर हैं. और अगर 3 पोर्टफोलियो या 3 ब्रांड्स में अगर आप देखें तो सबसे पहली लाइन जो है ये आपको सबसे एफिशिएंट दिख रही होगी कि मैंने सिर्फ 29,000 रुपया खर्चा करके 5.5 लाख की सेल करी है. CPC भी इसकी कम है और CPC कम होने के बावजूद भी जो है काफी अच्छी सेल आ रही है. CTR भी इसका अच्छा है. ACOS भी कंट्रोल में है, सिर्फ 5% है. अगर मैं कहूँ कि भाई 2/3 मेरी ऑर्गेनिक सेल है और इसको मैं 3 से डिवाइड करूँ तो मेरा जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल है वो सिर्फ 1.7 रह जाता है.
ये जो आपको लाइन आइटम दिख रही है, इसमें मेरी सेल लगभग 75 to 80% है। ये मेरा एक जो प्रोडक्ट रेंज है ये काफी सेटल हो चुकी है। इसका आरओएस भी लगभग 20 के करीब है, विच इज वेरी गुड। एंड दिस इज समथिंग, अगर आप इसको नोट कर लें, दिस इज समथिंग दैट यू शुड टारगेट एज अ लॉन्ग टर्म नंबर। मतलब मुझसे कई लोग आकर पूछते हैं कि भाई हम कितना टारगेट करें, हमारा ए कॉस्ट कितना होना चाहिए, हमें कितनी स्पेंड करनी चाहिए। तो अगर आप देखें कि अगर मैं 30,000 यहाँ पे स्पेंड कर चुका हूँ, तो मे बी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई वुड हैव स्पेंट अराउंड 90,000 रुपीज, और मे बी 90,000 to 1 लाख रुपीज मैं यहाँ पे स्पेंड कर चुका हूँ ऑलरेडी। एंड दीज आर द ए कॉस्ट नंबर्स जो ये इसी के आसपास रहता है, मतलब 5-5.5% के करीब रहता है इस वाली प्रोडक्ट रेंज के अंदर, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म पे ऑप्टिमाइज हो चुकी है। अब इसके अंदर हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ थोड़ा बहुत, जैसे एक बड़ा सुंदर सा बाग है, माली आके बस थोड़ी झाड़ियां काट छाट कर देता है, उससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं कर पाते, बिकॉज दिस इज हाईली ऑप्टिमाइज्ड कैंपेन्स रनिंग फॉर सो लॉन्ग नाउ। एंड इफ यू विल कम टू द सेकंड लाइन आइटम, दिस इज समथिंग जो हमने प्रोडक्ट रेंज 6 महीना पहले इंट्रोड्यूस करी थी इन फेब्रवरी। तो 6 महीना भी अभी वैसे पूरा नहीं हुआ है, आई थिंक फेब्रवरी या मार्च में करी थी। वी हैव 6 मंथ रनिंग। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हम ए कॉस्ट जो है लगभग 13% पे ला चुके हैं। दिस अगेन स्टार्टेड विद 80%, came down to 50, then 35, then 25, then 20, now it is 15। और लॉन्ग टर्म में, और लॉन्ग टर्म कुड बी 1 year, 2 year, 3 year, वी एम की इसका ए कॉस्ट भी जो है ऊपर वाली लाइन आइटम के जितना हो जाए। तो आई विल टेल यू हाउ टू डू सर्टेन ऑप्टिमाइजेशंस, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस। नाउ यू कैन सी कि जैसे मैंने पहली लाइन आइटम में लगभग 30,000 रुपीज का खर्चा किया था, दूसरी में मैंने 40,000 का किया है। लुक एट द इंप्रेशंस आई एम जनरेटिंग। आई एम जनरेटिंग अ लॉट ऑफ इंप्रेशंस एंड आई एम जनरेटिंग अ लॉट ऑफ क्लिक्स ऑल्सो। बट क्योंकि नीचे वाले का सीटीआर लो है, सीटीआर लो है बिकॉज अगर आपको मेरा वो स्पॉन्सर्ड आइटम दिखता है, क्योंकि ये रिसेंटली लॉन्च्ड है, इसके अंदर रिव्यूज ज्यादा नहीं है, रेटिंग्स अच्छी है बट ज्यादा नंबर ऑफ रेटिंग्स नहीं है। सो व्हाट द कस्टमर फील इज कि भाई ये ब्रांड अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, तो उसका क्लिक करने का जो जो वो होता है प्रोबेबिलिटी, वो कम हो जाता है। तो यू कैन वेरी वेल सी दैट कि वो क्लिक करने का प्रोबेबिलिटी जो है काफी कम हो गया है, 0.24% के करीब हो गया है। जबकि सीपीसी मेरा काफी हाई है, यानी 7.28 रुपीज है। मतलब मैं बहुत एग्रेसिव हूँ इस पे, और मैं 214 ऑर्डर्स भी लेकर आया हूँ और 3 लाख रुपए की सेल भी लाया हूँ, बट मेरा ए कॉस्ट जो है 13.53% है। आज मैं जो आपको एक कैंपेन दिखाऊंगा वो इसी पोर्टफोलियो की एक कैंपेन दिखाऊंगा, एंड आई विल शो यू लाइव एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग देयर। आरओएस, नाउ यू नो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉस्ट। एंड नाउ देन वी मूव ऑन टू द थर्ड। ये हमने सिर्फ 10 दिन पहले लॉन्च किया है। तो अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो भी आपको ये इंप्रेशंस दिख रहे हैं, ये सिर्फ 10 या 11 दिन के इंप्रेशंस है। वी हैव गॉन berserk on this. We have been able to get about 3,000 clicks, क्योंकि शायद इसकी प्लेसमेंट हमने बहुत हाई रखी है, अच्छी जगह पे रखी है। एक ये थोड़ी सी मेच्योर्ड कैटेगरी है अमेजोन के अंदर, तो इस पे सीटीआर भी हमारे को इतना खराब नहीं मिला है। We have got around 0.32 and we have spent around roughly 18-19,000 on this, and we have generated sales also. तो अगर आप जैसे देख सकते हैं, इसमें एवरेज टिकट साइज अराउंड 2,200 के करीब है, एज यू कैन सी। So we are generating sales also on this, but look at the ACoS number. ACoS number is 35%. So people, they come to me, we discuss, they say इसमें ACoS सारा तो एडवर्टाइजिंग ले जा रहा है। तो मैं कहता हूँ आप उनको कि भाई आप एडवर्टाइजिंग को एज अ स्पेंड मत देखें, एज अ इन्वेस्टमेंट देखें। अगर आप 80% पे भी ACoS वर्क करते हो, कि मेरा फर्स्ट मंथ में 80% भी ACoS रहता है, सेकेंड मंथ में मैं उसको 70% ले आता हूँ, थर्ड में 50 ले आता हूँ, फोर्थ में 35 ले आता हूँ, फिफ्थ में 25 ले आता हूँ, सिक्स्थ में 20 ले आता हूँ, सेवंथ में 15 ले आता हूँ। अब मैं ये कहता हूँ कि अब आप अपना ना रिवर्स वर्कआउट करें कि आप कितना पैसा डाल सकते हैं और कितनी सेल्स आपकी जनरेट होगी आपके हिसाब से, एंड देन यू पुट इन द मनी। अगर आप पहले ही ये नंबर देखने लग जाएंगे, लाइक यू कैन सी वी हैव ऑलरेडी स्पेंड इन द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ टिल नाउ, हम ये 20,000 के करीब स्पेंड कर चुके हैं। और जब तक हम ये एग्जिट करेंगे, हमने आई थिंक 4 या 5 तारीख को चालू किया था, और जब तक हम ये एग्जिट करेंगे ये नंबर 1 लाख क्रॉस हो चुका होगा। तो वी वुड हैव स्पेंड 1 लाख रुपीज, roughly around 4,000 per day already on in the first month on this range that we have introduced. So the ACoS, मतलब we are very happy to see the ACoS is just 35%, but अगर वो 60-70% रहता
तो भी हम उसको मान के चलते कि चलिए कोई बात नहीं, फर्स्ट मंथ है, बट वी आर वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट। सेकेंड जो लाइन आइटम है उसके अंदर एक कॉस्ट हमारा बहुत हाई था फर्स्ट मंथ में, बट वी हैव स्टिल काइंड ऑफ seen some kind of a good traction from the start itself in this third campaign, the third thing that we have launched. Any questions till now? Okay, no questions. So I'll move forward then in that case. So this is the campaign जो मैं आपको दिखा रहा था, which is like the most optimized campaign, 5% आपको दिख रहा है, but ऐसा नहीं है कि उसके अंदर जो अलग अलग campaigns हैं वो भी उतनी ही optimized हैं। तो कोई जैसे आप देख रहे हैं 2% ACOS है, कोई 3% ACOS है, कोई 12% है, कोई 11% है, कोई 8% है, बट ओवरऑल दिस ऑल प्रोडक्ट रेंज जो है दिस इज ओवरऑल गिविंग अ 5% थिंग। तो हम उसके अंदर ऑप्टिमाइजेशंस अलग अलग ढंग से अपनी करते रहते हैं। नाउ दिस इज द सेकेंड लाइन आइटम जो मैं आपको बता रहा था कि जहाँ पे मेरा ACOS जो है 13.5% चल रहा है इन द 5th ऑफ द 6th मंथ, एंड आई विल बी शोइंग वन ऑफ द कैंपेन्स जो इसके अंदर है। As you can see that we are running multiple campaigns, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, around 15, 16 campaigns we are running, and we are generating, decent impressions, distributed impressions, except for the last 2 or 3, which have been, very recently launched products. You can see that we are generating decent amount of impressions, decent amount of clicks, and CTR हमारा ये product category जैसे fans की है उसके हिसाब से ठीक है। इतना हम स्पेंड कर चुके हैं 39,000 के करीब। द CPC हैज कम एट 7.2 and we have generated a sales giving us the ACOS of 13.5%. This is the latest range जो मैं आपको बता रहा था। As you can see, for one of the campaigns जो हमने close कर दी है, हमने top of the search result 5% से ऊपर किया था। Now this is something we can talk about later on, but ये campaign जो है ज़्यादा बढ़िया नहीं चल रही थी। It was giving us a ACOS of 170%, तो हमने इसको बंद कर दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं that the other 3 campaigns that are running, they are generating good impressions. Decent number of clicks are coming, spends is happening, and also the sales number are also showing up, and we have a roughly ACOS of about 35%. Okay, so I will come back to share the original screen with me, and this is the live campaign that I wanted to show you. Any question till now, or I'll start asking? I have sent a question on chat. Okay, I'll just see. Yes. So Abhishek, category-wise standard ACOS numbers, I'll tell you. I think you should gun for 7% in the long run. But then you create your own benchmarks कि मैं कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर मैं जा रहा हूँ. Is my progress smooth? जैसे I am okay with a 70, 75, 80% kind of a benchmark also to start with. And once we do that, उसके बाद हम उसको ना कर सकते हैं कि भाई अगले महीने मेरे को ये टारगेट करना है, तो मेरे को ऑप्टिमाइजेशन करनी है, उसके अगले महीने मेरे को ये टारगेट करना है। तो मैं कहता हूँ 80, 50, 35, 25, 15, 7 एंड 7 इज समथिंग, मतलब आपको 15% टारगेट कर लेना चाहिए लगभग 6 महीने के अंदर, और 6 महीने के बाद आपका शुरू हो जाना चाहिए कि भाई मैं 7% तक कब आ सकता हूँ। तो वो आपको और 6 महीने लगेंगे या और आपको 1.5 साल लगेगा, 1 साल लगेगा, that totally depends on the category and also you, how well are you able to optimize it. बट आप 6 महीने में 15% का टारगेट जरूर पकड़ के चलें। अगर 20 भी हो तो मतलब निराश होने की जरूरत नहीं है कि ठीक है वी आर वेरी क्लोज, बट दिस इज व्हाट यू शुड बी टारगेटिंग। Am I clear or anything more would be required? Yeah, okay. Okay. Yeah. So now the thing is that if you'll see, और क्योंकि जैसे अगर मैं एक कैंपेन की बात कर रहा हूँ, एक पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर मल्टीपल कैंपेन्स हैं मेरे पास, so what happens is कि when I see at a campaign level, क्योंकि उसमें बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारी कैंपेन्स हैं, तो एक नंबर दिखेगा कि वो आराम से मूव कर रहा है, थोड़ा ऊपर गया थोड़ा नीचे आया,
बट अगर मैं इंडिविजुअल कैंपेन्स में जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि वो नंबर बड़ा वायलेंटली मूव करता है। इट इज ओनली बिकॉज एक पोर्टफोलियो में मल्टीपल कैंपेन्स चल रही होंगी, तो पोर्टफोलियो लेवल पे जो वो वेरिएशंस हैं, जो बहुत स्टीप वेरिएशंस हैं इधर प्लस और माइनस, वो स्मूथ आउट हो जाती हैं। बट कैंपेन लेवल पे, इंडिविजुअल कैंपेन लेवल पे द वेरिएशंस आर वेरी हाई। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये एक हमने कैंपेन चलाई थी, इसके अंदर हमारा सिर्फ एक ही प्रोडक्ट एक्टिव है। तो हमारा ये कोशिश रहता है कि हम शुरू में एक कैंपेन चलाते हैं, उसके अंदर एक टाइप के 2-3 प्रोडक्ट्स डाल देते हैं, बट धीरे धीरे हमको ये दिखता है कि एक ही प्रोडक्ट जो है सारे इंप्रेशंस कैनिबलाइज कर रहा है। तो हम क्या करते हैं कि अगर वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो हम प्रोडक्ट्स को वहां पे, इंप्रेशंस अगर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम वहाँ प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं। नहीं तो अगर हमें दिखता है कि कोई प्रोडक्ट मार खा रहा है दूसरे प्रोडक्ट की वजह से, मतलब एक प्रोडक्ट दूसरे वाले को इंप्रेशंस भी नहीं दे रहा, लेने दे रहा, तो हम जो बेचारा वो वीक प्रोडक्ट है उसको हटा के हम उसको दूसरी कैंपेन खोल देते हैं। सो 5-6 महीने के अंदर हमने ये सब ऑप्टिमाइजेशन करी है। अगर जैसे मैं आपको इसका प्रोडक्ट लेवल पे दिखाऊंगा तो इफ यू विल सी, मैं इसका लाइफ टाइम भी दिखा देता हूँ आपको। यू कैन सी माई स्क्रीन विच इज कमिंग। सो वी स्टार्टेड विथ 4 प्रोडक्ट्स इन दिस। अगर मैं इसका लाइफ टाइम दिखाऊं आपको, या नो आई एम सॉरी, इसका हमने बहुत जल्दी ही बंद कर दिया होगा ये। We did only one. We copied this campaign and we started only for this particular product, which is the metallic brown. So we usually do one product only per campaign. इस campaign में हमने multiple products से नहीं शुरू किया था, but usually there are many campaigns जहाँ पे हम multiple products से शुरू करते हैं और धीरे धीरे करके उसमें एक या दो ही product छोड़ देते हैं। और हमारे को लगता है कि अगर कोई प्रोडक्ट ढंग से नहीं कर रहा है तो हम उसको वहां से हटा के नई कैंपेन चालू कर देते हैं। नाउ last month, what we saw an ACOS of around 24%, as you can see here. This was last month. So we made certain changes. So I'll show you some history also for this. So we made certain changes, as you can see. हम लोग bidding वगैरह अपना जो है change करते रहते हैं, कुछ जो keywords हैं वो add कर देते हैं, delete कर देते हैं. This is what we kind of keep on doing. तो last month में हमने जुलाई 1 में, जुलाई 12 में और जुलाई 31 को हमने कुछ चेंजेस करे थे। वो चेंजेस क्या करे थे मैं आपको बताऊंगा। सो इफ आई गो बैक टू दिस कैंपेन अगेन, ओके, सो इफ समबडी कैन हेल्प मी कि अगर आपको CTR 0.2% दिख रहा है, CPC 5 रुपीज दिख रहा है और सेल्स कम दिख रही है, ACOS 25% दिख रहा है, तो व्हाट शुड यू बी डूइंग? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड? Okay. Any answers on this? ओके, सो नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे CTR 0.2% था, जो मेरी ओवरऑल जो पोर्टफोलियो लेवल पे जो CTR है मेरा, वो यहाँ पे 0.32 के करीब था। तो दिस इज इवन लोअर देन दैट। तो अगर मुझे CTR बढ़ाना है तो CTR बढ़ाने के लिए मुझे उस पर बिडिंग बढ़ानी पड़ेगी। अब ये Catch-22 सिचुएशन है कि अगर मैं CTR बढ़ाने के लिए बिडिंग बढ़ाता हूँ तो मेरे दिमाग में ये आएगा कि भाई अगर मैंने CTR बढ़ाने के लिए बिडिंग बढ़ा दी तो मेरा कॉस्ट पर क्लिक बढ़ जाएगा। अगर मेरा कॉस्ट पर क्लिक बढ़ जाएगा तो मेरी स्पेंड बढ़ जाएगी। अगर मेरी स्पेंड बढ़ जाएगी तो मेरा ए कॉस्ट बढ़ जाएगा, विच इज विच कम्स वेरी वेरी नेचुरली। बट व्हाट हैपेंस इज कि कई बार अगर आपका CTR बहुत ज्यादा लो होता है, विच मीन्स आप ये देख सकते हैं, सबसे पहला नंबर जो आपको देखना है CTR का, व्हाट यू कैन सी इज कि अगर आपका CTR लो है, इसका मतलब आपके एड की जो प्लेसमेंट है वो घटिया जगह पर हो रही है। मतलब वहां पे या तो लोग क्लिक ही नहीं कर रहे, और अगर जो लोग क्लिक भी कर रहे हैं वो इतने सीरियस नहीं है सेल को लेके। तो आपने CPC तो मैनेज कर लिया अपना, बट आपका जो ACOS का नंबर है वो हाई रहा क्योंकि वहां पे से आपको कन्वर्जन नहीं आ रही है। लेट मी सी व्हाट हैपेंड दिस मंथ टिल नाउ। इंप्रेशंस इसमें 2 लाख के करीब थे हमारे। ओके, नाउ यू सी व्हाट हैज हैपेंड। हमने 10 दिन के अंदर ही
जो पिछले महीने हमने 2 लाख इंप्रेशन करे थे वो तो हमने कर दिए 1,45,000। सो मतलब वी हैव ऑलरेडी डन 70% ऑफ इंप्रेशन इन 10 days ओनली। तो मतलब जब तक हम ये 31 का महीना खत्म होगा, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हम लोग 3 लाख इंप्रेशन पे बैठे होंगे, विच इज लाइक 50% मोर इंप्रेशन ऑफ दिस। ओके, नाउ द स्पेंड्स is one thing. If you look at the, I'll come to the CTR number also. If you'll come to this CPC number, this CPC number was around 5 rupees, which has increased to 10 rupees. तो बट नेचुरल है कि आदमी सोचेगा यार मेरा CPC अगर 5 से 10 रुपए बढ़ेगा तो मेरा जो है ACOS बढ़ जाएगा। बट इफ यूल सी द ACOS has come down. ACOS has come down from 25% to 16% for the very reason कि जहां पे हमारी एड की प्लेसमेंट हुई है वहां पे प्रोपेंसिटी ऑफ द कस्टमर उस पेज पर खरीदने के लिए ज्यादा प्रोबेबल होता है कि वो उस पे वहां पे खरीद कर जाएगा। ही विल मेक अ डिसीजन देयर। वो कैसे होता है हमें नहीं पता, बट CPC बढ़ाने की वजह से हमारे को प्राइम स्लॉट्स में ऑटोमेटिकली Amazon के एल्गोरिथम के हिसाब से हमारे को प्लेसमेंट मिलती है, जहाँ पे हमारा जो प्रोपेंसिटी ऑफ अ कस्टमर कन्वर्टिंग is little higher. So even though we are fighting a lot कि हमारा CPC जो है 5 से 10 रुपए हो गया है, so there we can sell more. We have been able to sell more, as you can see, from ACOS of 25% we have come down to ACOS of 16%. Now what do we want to do next from here? क्योंकि अभी चल रहा है, आपको जैसे मैंने बताया था 31 जुलाई को हमने इस कैंपेन में कुछ चेंजेस करे थे, तो वी आर स्टिल वॉचिंग। वी गिव अबाउट 7-10 days और समटाइम्स 2 weeks ऑल्सो। अगर हमारे को नहीं लगता कि भाई कैंपेन में कोई चेंज करना चाहिए तो वी गिव अबाउट 2 weeks ऑल्सो। सो मेरे हिसाब से ये कैंपेन सही जा रही है, मेरे को इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो मेरा CTR था 0.2 से 0.17 हो गया है। नॉट दैट मच टू वरी, बट येस हाँ परसेंटेज टर्म्स में ऐसा लगता है कि ज्यादा है। वी कैन डू समथिंग अबाउट इट, बट वो इतना कम डिक्रीज हुआ है कि मैं उस पर कोई डिसीजन नहीं ले सकता। बट ये जो CPC का नंबर है, ये जो 10 रुपए का आया है, तो आप देख रहे हैं 5 रुपए का जब CPC का नंबर था मेरा ACOS हाई था, ठीक है। आज जब 10 रुपए का CPC का नंबर है, मेरा ACOS लो है, तो मेरे को 5 और 10 के बीच में एक ऑप्टिमल CPC नंबर खोजना है कि मैं अगर 8 रुपए पे पहुंचूं तो मेरे बिना प्लेसमेंट ज्यादा हिले, मतलब प्लेसमेंट मेरी अच्छी जगहों पर हो पर वो बिना प्लेसमेंट ज्यादा हिले, मेरा ACOS कम हो जाए। दिस इज व्हाट आई हैव टू काइंड ऑफ सी or do. Am I making sense in this? Abhishek, if you can help me here because you are the only one who's talking to me. Yes, sir. All very good. एकदम बढ़िया. Yeah. Very So clear. मैंने प्लेसमेंट तो बहुत अच्छी कर दी अपनी, तो मेरा ACOS, क्योंकि मेरी सेल्स बढ़ गई तो ACOS मेरा कम हो गया। तो अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि प्लेसमेंट की क्वालिटी डिस्टर्ब ना करके क्या मैं CPC थोड़ा अपना कम कर सकता हूँ कि नहीं, सो दैट ये ACOS, अगर ये सपोज CPC मेरी 10 रुपए से 8 रुपए हो जाए तो मेरा ACOS जो है वो 16% से स्ट्रेट अवे 20% गिर के 13% हो जाएगा, like that. So this is what I have to aim and this is what I have to optimize. तो हमारे पास टूल्स हैं। सबसे पहला टूल, अगर आपको ये टाइप की चीज देखनी है, सबसे पहला टूल है आपके पास प्लेसमेंट्स का। इफ यू लुक एट द प्लेसमेंट्स, ओके, दिस प्लेसमेंट थिंग lets you bid higher by a particular percentage depending on कि आपको टॉप ऑफ सर्च फर्स्ट पेज में रखना है प्रोडक्ट या प्रोडक्ट पेज में कितना ऊपर रखना है। तो यानी जैसे सपोज किसी ने डाला सीलिंग फैन, तो अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट पेज के अंदर टॉप ऑफ सर्च में मेरा प्रोडक्ट आए, तो उसके लिए अगर आप देखेंगे 11-11 रुपए तक, 15-15 रुपए तक भी बिडिंग जाती है। उसका CTR बहुत अच्छा हो जाता है। उस पे स्पेंड अगर आप देखेंगे कि 414 रुपए का किया, बट हमारी यहाँ पे कोई सेल नहीं आई है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि मैंने टॉप ऑफ सर्च में मेरा प्रोडक्ट तो आ गया, बट क्योंकि मेरे जैसे आपको बताया था ये प्रोडक्ट लॉन्च हुए सिर्फ 5 महीने के करीब हुआ है, मे बी नंबर ऑफ रिव्यूज इतने ज्यादा नहीं थे कि लोगों ने कहा कि भैया इनके तो अभी ज्यादा बिक नहीं रहे, तो ये यूं ही ऐड कर रहे हैं दिखाने के लिए। दिस मे नॉट बी अ गुड प्रोडक्ट टू बाय, मतलब मे बी नॉट द राइट टाइम टू बाय दिस प्रोडक्ट। आई विल रादर गो फॉर अ ओरिएंट और अ हेवल्स और समथिंग एल्स लाइक दैट।
नंबर 2, प्रोडक्ट पेजेस। अगर जैसे सपोज कोई किसी ने जो है पंखों के बारे में डाला, उसके प्रोडक्ट पेजेस देख रहा है, उस प्रोडक्ट पेजेस के अंदर प्लेसमेंट जो है हमने सपोज 151% कर रखी है। ये मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है। तो हमारे इंप्रेशन आए, बहुत सारे क्लिक्स आए, CTR इसमें कम था हमारा, CPC was high 10.56 and the ACOS was 12.86%। मैं आपको इसका मतलब बताता हूं, दिस इज इमीडिएट क्विक फिक्स। बिना कीवर्ड टारगेटिंग, बिना कीवर्ड बिडिंग चेंज करे आप इससे बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, बिना अपनी कैंपेन्स को डिस्टर्ब करे। वो मैं बताता हूँ कैसे। मैं आपको एक बार कीवर्ड का वो दिखा देता हूँ। जैसे कोई भी एक कीवर्ड मैं ले रहा हूँ, जैसे मैंने एक कीवर्ड लिया यहाँ पे, से सपोज दिस इज अ कीवर्ड विच इज अ सीलिंग फैन। ओके, सीलिंग फैन फ्रेज, जिसपे मैंने 4 रुपए 11 पैसे की बिड लगा रखी है। 4 रुपए 11 पैसे की बिड लगा रखी है। जस्ट दिमाग में रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं इसमें। आई विल कम बैक टू द प्लेसमेंट्स अगेन। अगर मैंने सीलिंग फैन फ्रेज मैच पे 4 रुपए 11 पैसे की बिड लगा रखी है, यानी 4 रुपए की बिड लगा रखी है, और मैंने यहाँ पे 151% डाल रखा है, what I am saying basically is that the प्रोडक्ट पेज पे 4 रुपए की जो मेरी बिड है वो प्लस 150% करके दिखाई जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आई एम रेडी टू कम्पीट एट दैट लेवल कि मेरे को वो 10 या 10.5 रुपए तक की वो CPC में बिडिंग हो जाए। क्योंकि मैंने वहां देखी, अगर आपको याद हो, 4 रुपए की डाल रखी थी अपनी। अगर मैंने वहां पे अपनी बिडिंग जो है 4 रुपए की डाल रखी है ऑन एन एवरेज, तो यहाँ पे वो 10.5 रुपए की क्यों आ रही है? वो इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे 151% डाला हुआ है। यानी 4 का अराउंड 2.5 गुना, मतलब 151 प्लस 100, तो 2.5 गुना के करीब जो है बिडिंग मेरी जा सकती है। एंड दैट इज वाई द CPC इज हायर। तो कई बार आपको लगता है कि आपको डर लग रहा है थोड़ा कि भाई आपने CPC लो डाली है, मैं ज्यादा नहीं डालता कभी, सारा मतलब बिडिंग लो डाली है, मैं ज्यादा नहीं डालता कभी, ज्यादा मेरा पैसा खर्चा हो जाए। 4 रुपए की डाल लो, कोई बात नहीं। यहाँ पे चेंजेस कर दो, यहाँ पे 50% कर लो सबसे पहले। तो यानी आप 6 रुपए तक कंपीट कर रहे हो, राइट। 75% कर लो यानी आप 7 रुपए तक कंपीट कर रहे हो। 100% कर लो यानी आप 8 रुपए तक की CPC में बिडिंग में कंपीट कर रहे हो। अगर आपको दिखता है कि वो जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ और यहाँ पे बढ़ते ही स्पेंडिंग ज्यादा हो गई, एक कॉस्ट बढ़ गया, पर रिजल्ट नहीं मिला, आप उसको डिक्रीज कर सकते हो। सो यहाँ पे से वो लेवल्स जो हैं आप फाइंड आउट कर सकते हो अपने। तो जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आई एम लुकिंग टू डिक्रीज ए कॉस्ट, मैं वो यहाँ से करूंगा। ओके, मोस्टली आई विल डू इट फ्रॉम हेयर टू सी कि विच इज द राइट पॉइंट। सो प्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल यूज इट, बट मैंने काफी लोगों से जिनसे बात करी है, मेनी पीपल डोंट यूज द प्लेसमेंट्स, वी यूज इट वेरी वेरी डायनामिकली, एंड हम उसको 2-3 दिन में भी यूज कर लेते हैं। क्योंकि मेरे को कीवर्ड की बिडिंग इस पे जो है चेंज नहीं करनी पड़ती है। मैं सिर्फ यहाँ पे आकर इसको थोड़ा सा ट्वीक कर देता हूँ और मेरा काम चल जाता है, राइट। एनी क्वेश्चंस इन दिस? ओके, सो आई विल मूव अहेड। नाउ आई विल कम टू द कीवर्ड टारगेटिंग। इफ यू विल सी हियर, दिस मंथ का ये नंबर है। मतलब अगर आप देखेंगे जो अभी तक मेरा 2600 रुपया, 2600 रुपीज जो खर्चा हुआ है, उसके अंदर से सबसे मोटा खर्चा जो है ये पहले 5 या 6 पे ही हुआ है। और उसके अंदर से भी लगभग लगभग 20% जो खर्चा है, 23-24%, ये सीलिंग फैन फ्रेज टाइप ये वाला कीवर्ड ले गया है। और सीलिंग फैन एग्जैक्ट जो है वो CTR भी अच्छा दिया है उसने, और स्पेंड भी उस पे लगभग लगभग अराउंड आई थिंक 40% के करीब हुआ है। और सेल्स में वो अराउंड 2/3 सेल देकर गया है। तो 40% स्पेंड पे 2/3 सेल देकर गया है। दैट इज वाई द ACOS इज शोइंग बेटर। इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता हूँ, बिकॉज दिस इज डूइंग गुड, आई कैन इंक्रीज इट इवन फर्दर। अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो चांसेस ये हैं कि मेरा जो है CTR और बढ़ सकता है, CPC जरूर बढ़ेगा, बट मेरे जो है ना सेल्स भी बढ़ सकती है, राइट। दिस सीलिंग फैन, नाउ दिस हैज कॉस्टेड मी अ लॉट ऑफ मनी। हो सकता है ये नहीं चल रहा है, आई नीड टू सी वाई। तो मैं एक कीवर्ड रिपोर्ट डाउनलोड करके देख सकता हूँ, बट एज ऑफ नाउ
क्योंकि ये नहीं चल रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर सकता हूँ, मतलब 4 रुपए से 3 रुपए उठा के देख लिया मैंने कि भाई इसमें स्पेंडिंग तो बहुत हो रही है पर इसका रिजल्ट नहीं आ रहा। इसका एक चांस ये है इसका रिजल्ट नहीं आने का कि सीलिंग फैन, ये फ्रेज है सीलिंग फैन एग्जैक्ट है, तो अगर कोई सीलिंग फैन डालता है तो एग्जैक्ट में तो इसको दिख रहा है और आदमी लेकर भी चला जाता है। बट अगर किसी ने सपोज डाला, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 ब्लेड सीलिंग फैन, तो मेरा ये कीवर्ड ट्रिगर हो जाएगा, पर अगर सपोज मेरे में 2 ब्लेड्स नहीं है 3 ब्लेड्स हैं तो वो कन्वर्ट नहीं होगा। तो दैट इज व्हाई आई नीड टू सी दी कस्टमर सर्च टर्म रिपोर्ट ऑल्सो, कि कौन सी कस्टमर सर्च टर्म रिपोर्ट इसको जो है ट्रिगर कर रही है इस वाले कीवर्ड को, एंड देन आई नीड टू डू, तो दैट इज अनदर डेप्थ व्हिच आई डोंट वांट टू टेक इन टुडे सेशन। फैंस, सीलिंग फैंस हाई स्पीड, दिस इज ब्रॉड, सो बेसिकली अगर उसको सीलिंग फैंस मिल जाता है, हाई स्पीड फैंस मिल जाता है, हाई स्पीड सीलिंग फैंस मिल जाता है, तो ये इस कीवर्ड को ट्रिगर कर देगा। और आप जैसे देख रहे हो, क्योंकि ये बहुत रैंडम और बड़ा ब्रॉड और अजीब सा कीवर्ड है, हालांकि इसके अंदर इंप्रेशंस भी हैं, सीटीआर भी एवरेज है, इसका सीपीसी हाई है, बट ये जो है हमारे को रिजल्ट दे गया है, राइट। और अगर मैं आपको एक मतलब रियलिस्टिकली बताऊं, कभी भी आपके 3 या 4 ऑर्डर से कम हो, वो कीवर्ड को आप तब तक जो है ऑप्टिमाइज करने की कोशिश ना करें, बिकॉज जब तक हमारे पास सिर्फ एक ही ऑर्डर आता है, मतलब अब ये कहने को हाई स्पीड सीलिंग फैन एग्जैक्ट 5,000 इंप्रेशन में 27 रुपया खर्चा करके मेरे को एक ऑर्डर दे गया, तो एक और इसका कम आ रहा है, बट दैट डजेंट मीन कि इफ आई स्पेंड मोर वेदर मेरे को वो ऑर्डर्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। जब तक हमारे पास 3 या 4 ऑर्डर नहीं हो जाते एक कीवर्ड पे, इट इज नॉट करेक्ट टू मच ऑप्टिमाइज दैट, बट यस वी शुड कीप ऑन लुकिंग ऑन दीज कीवर्ड्स। तो कई बार हम डेट रेंज थोड़ा बढ़ा के भी देख लेते हैं, क्योंकि मैं जैसे इसको जुलाई से लेकर अगस्त तक देख लेता हूँ, तो लेट मी सी एनीथिंग चेंजेस, लेट मी सी दैट, या सो सीलिंग फैन फ्रेज, इफ यूल सी दिस इज कॉस्टिंग मी अ लॉट ऑफ मनी, तो इसका मतलब सीलिंग फैन जो एज अ फ्रेज कीवर्ड है, इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी। मैंने इसको जुलाई में ऑप्टिमाइज भी किया होगा, तो ये जो है मेरे को ये और फर्दर ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, सो मच सो कि ये मेरे को कमा के नहीं दे रहा है। सो ये करीब 40% के करीब बजट ले रहा है, बट 40% बजट में सिर्फ ये मेरे को रफली अराउंड 12% ही सेल्स दे रहा है, सो विच इज रियली बैड। सो आई नीड टू डू समथिंग अबाउट दिस कीवर्ड। तो ये कीवर्ड मैं इसको या तो बिडिंग अभी कम कर देता हूँ इसकी, एज यू कैन सी आई डू इट से 2.09 कर दी मैंने इसकी, इमीडिएटली आपके सामने कर दी, दिस इज लाइव। And ceiling fan, this is giving me decent result, so let me just see if I increase the bidding a little more, what happens. Okay, I am okay with this high speed ceiling fan। जैसे हमने देखा कि इसमें देखिए एक ही ऑर्डर है, अगस्त में एक ही ऑर्डर था, जुलाई में कोई ऑर्डर नहीं था, but I need to kind of spend more on this, so let me bid a little more on this, let me see। तो मैंने इसमें 1 रुपया बिडिंग बढ़ा दिया, let's see what happens। But what I have come to know is that basically these are the 3, 4, 5 keywords जो खेल रहे हैं मार्केट में, और इस पे वो ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ से और इम्प्रूव हो जाए। तो दिस इज व्हाट आई हैव डन। सो बेसिकली व्हाट आई हैव ट्राइड टू शो यू इज कि बिटवीन लास्ट मंथ एंड दिस मंथ सीटीआर और हमने एकॉस देख के हमने सीपीसी बढ़ा दिया, हमने बिडिंग बढ़ा दिया, जबकि सीटीआर हमारा जो था हमें बढ़ाना था और हमारे को एकॉस बढ़ा हुआ था, फिर भी हमने बिडिंग बढ़ाया क्योंकि हमने ये फील किया कि हमारी प्लेसमेंट सही नहीं हो रही है। और अगस्त में वो प्लेसमेंट सही हो गई, फिर हमने कीवर्ड्स पे फोकस किया। जब हमने कीवर्ड्स पे फोकस किया तो हमने पाया कि एक पर्टिकुलर कीवर्ड है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो सीलिंग फैन एग्जैक्ट है, बट एक कीवर्ड है जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा। हमने थोड़ा सा उसको जाकर देखा तो हमने उसको लो बिड कर दिया है उसके, जिससे हमारा और पैसा खर्चा ना हो, बिकॉज वी सॉ कि इवन फॉर अ लॉन्ग टाइम ये सिर्फ 40% खर्चा करके हमारे को 12% सेल्स ला कर दे रहा है। रादर ये मेरे लिए दिस इज अ हॉर्स आई शुड बी बेटिंग ऑन, बट बेटिंग की भी एक लिमिट होती है, मतलब आप इसको 5.51 को 10 रुपीज कर दो, बट एक लेवल के बाद आपको कन्वर्जन्स उतनी ही मिलेंगी और उसके बाद आपका एकॉस बढ़ता चलाया जाएगा। तो आपको एकॉस का अपना जो है ना इक्विलिब्रियम ढूंढना है। So you have to not only check the campaigns, but the keywords and the placements also, and all these things are dynamic.
तो जो हमारे ऑलरेडी सेट प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें मैं बता रहा था, जिसमें आपने ए कॉस्ट 3% भी देखा, एट दी पोर्टफोलियो लेवल 6.4 शायद था जो आप देख रहे थे, उस लेवल पर जाकर हम लोग थोड़ा बहुत ही ट्वीक करते हैं। हम डायनामिकली देख लेते हैं कि भी थोड़ा बहुत क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हैं, ज्यादा नहीं करते। जैसे मैंने यहाँ पे 4.5 से 2 रुपये कर दिया, 4.5 से 5.5 रुपया कर दिया, वो इतना ज्यादा हम लोग उसको वेरिड मूवमेंट नहीं करते। थोड़ा थोड़ा मूवमेंट में हमारा काम चल जाता है। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द कीवर्ड कि उसका जगह कहाँ पर है, उसका सीटीआर कितना होना चाहिए, और उसकी जो है बिडिंग कितनी होनी चाहिए। वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द वे फॉर अस। सो आई थिंक दैट शुड बी इनफ फॉर टुडे, अनलेस पीपल हैव क्वेश्चन, बिकॉज इस कैंपेन के एग्जांपल में हमारे को सब कुछ मिल गया था। ये एक कैंपेन थी जो थोड़े से पुराने प्रोडक्ट की थी, 5 महीने, ज्यादा नई की भी नहीं थी। दिस इज द कैंपेन जिसके अंदर जुलाई से अगस्त में हमने एक इम्प्रूवमेंट देखी थी, और वो इम्प्रूवमेंट किस वजह से हुई थी मैंने वो भी बताई है। और उसके बावजूद भी हमको दिखा कि देर इज मोर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो आज हमने उसमें चेंजेस कर दिए हैं। एनी क्वेश्चन? Yeah. So Manish, या one question is like the sector-wise I was asking, हाँ हाँ can we say that for supposing a product category like fans or हाँ हाँ stationery or हाँ for हाँ tea or for clothes, हाँ हाँ in clothes also ladies clothes or gents हम्म clothes, can we हम्म categorize that in this category your aim to get across of something like we should aim for this product wise, category wise? हम्म। Is there a सी benchmark there? सी देर इज एज सच नो बेंचमार्क, बट मैंने जितने भी अपने प्रोडक्ट कैटेगरीज का बेंचमार्क लिया हुआ है वो 7% लिया हुआ है, with inorganic sales contributing 1/3 and organic sales contributing 2/3. So this is the long-term goal that I have for each and every one of my product categories. Initially, it is very difficult to find out कि वो चीज़ क्या है, मैं कितने पे सेटल करूँ. What you can do is you can run auto ads. आप जब ऑटो ऐड चलाओगे तो उसके अंदर क्या होगा कि आपके पास ना डेटा बनना शुरू हो जाएगा। तो जब डेटा बनता है, कस्टमर सर्च टर्म आ रहा है, कस्टमर सर्च टर्म्स क्या हैं, फिर आप उसको लेकर मैनुअल अपना एक कैंपेन बना सकते हैं, और जब वो मैनुअल कैंपेन बनाते हैं तब आप उसमें उसको ऊपर नीचे कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू फॉर एनी न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी, यू स्टार्ट विद काइंड ऑफ ऑटो कैंपेन। अदरवाइज हो सकता है कि जैसे कपड़े के केस में मार्जिन बहुत ज़्यादा हैं रिलेटिवली, स्टेशनरी में मार्जिन बड़े कम है, तो हो सकता है आपको ये भी डेफिनेशन डिफाइन करना पड़े कि भाई मैं एक कॉस्ट इतना ही रखना चाहता हूँ, उससे ज़्यादा मेरा बजट नहीं है। तो व्हेन पीपल कम टू मी, अब जैसे जो ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, जो सीलिंग फैंस के प्रोडक्ट है, हमने इसमें ओवरऑल जो है अराउंड 15 lakhs का बजट रखा हुआ है, इन द सेंस कि 15 lakhs इज समथिंग जिसके बाद हम लोग स्टेबल हो जाएंगे। We have spent quite a lot of money already on this. Matlab, we would have spent in last 5-6 months, we would have spent about 60% of this budgeted amount. Already we have spent. So my point here is that शुरू में ये ना इन्वेस्टमेंट होती है। तो अगर आपने जैसे सपोज बजट ले लिया कि भाई मेरे को 5 लाख रुपया खर्चा करना है, 5 लाख रुपए को ना आप कर लो कि मुझे ऑन एन एवरेज ये 5 लाख रुपए, या सपोज कर लीजिए 6 लाख रुपए है, कि 6 लाख रुपए मेरे को ये खर्चा करना है, और इसको मैं स्टेप अप खर्चा करूंगा। देर इज नो पॉइंट डूइंग 1 लाख रुपीज का खर्चा जब शुरू के महीनों में आपके रिव्यूज भी नहीं दिख रहे हो प्रोडक्ट पे। देर इज नो पॉइंट डूइंग दैट। तो आप एक स्टेप अप अप्रोच ले सकते हो कि ठीक है, मैं पहले महीने में 30,000 खर्चा करूंगा, फिर अगले महीने में 60,000 करूंगा, फिर 1 लाख करूंगा, फिर 1.5 लाख करूंगा, फिर 2 लाख करूंगा। ऐसे करते हुए मेरे जो है ना 6 महीने के अंदर 6 लाख रुपए पूरे हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर मैं शुरू में जो मैं 30,000 रुपए खर्चा करने की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर इवन इफ द ए कॉस्ट इज कमिंग एट 75%, आई एम ओके। तो 30,000 75% ए कॉस्ट, यानी मैं 40,000 सेल्स की बात कर रहा हूँ। अगले महीने मैं 50,000 कर रहा हूँ। 50,000 का खर्चे पे अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं 50% ए कॉस्ट मैं मान के चल रहा हूँ, तो मैं 1 लाख रुपए की सेल्स की बात कर रहा हूँ। अगले महीने मैं कह रहा हूँ कि मैं 75,000 या 80,000 खर्चा कर रहा हूँ, बट एट ए कॉस्ट ऑफ से मे बी 40%। तो विच मीन्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट 2 लाख का सेल्स। ठीक है। तो ऐसे आप नंबर जब ड्रॉ कर लोगे ना, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि ये मेरी स्टेप अप अप्रोच रहेगी एड्स में भी और सेल्स में भी। तो अगर मैं ये स्टेप अप अप्रोच में मैंने ये ए कॉस्ट का टारगेट ले रखा है,
तो मेरी इतनी सेल हो जाएगी, इतनी सेल पे मेरा इतना मार्जिन है। तो उसे सपोज मैंने ये सेल्स सारी मिला के कर ली, सपोज अराउंड 15 lakhs कर ली, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो दिस वुड कम एट अबाउट, आपका सपोज टोटल 40% ए कॉस्ट हो गया। आपने 6 लाख स्पेंड किया 6 महीने में, 15 लाख की सेल करी, आपका 40% का ए कॉस्ट हो गया। तो सपोज आप ऑन एन एवरेज आपका ए कॉस्ट 40% है, और करंटली आप 6 महीने में 25% पर आ गए हो या 20% पर आ गए, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि भाई जो मैंने सेल करी ये 15 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए में मेरे पास जो था से सपोज 30% मार्जिन था। तो ये कॉस्ट वगैरह तो अलग है अभी, और बाकी तो ये जो है ये ग्रॉस मार्जिन मेरा 4.5 लाख रुपए का था, उसमें से 6 लाख हो गया। तो बेसिकली दिस इज अ स्पेंड, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट। एम आई ओके मेकिंग दैट इन्वेस्टमेंट? इफ यू आर ओके देन गो ahead with that. Okay. Also, another question, when we are entering this e-com marketing of our products, हाँ is there a way to know the number of brands that are already on that platform, and what is the total sales of that category on that yes platform? yes, there is a way to do it. What I'll do is that I will share you a link of my one of the earlier sessions that I had done for about 1.5 hours. उसमें पहले 30 मिनट में ना आपको ये सारे आंसर्स मिल जाएंगे कि आपको कैटेगरी कैसे Right. खोजनी है, उस कैटेगरी में आपको करना है काम या नहीं करना वो कैसे देखना है, कौन सा प्रोडक्ट लेना है, उसकी स्पीड क्या चल रही है, उसमें मैंने सब बताया हुआ है। और these are all basically some kind of a back of the envelope assumptions that we have to make, but they work. I'll Right. I'll just share it. I'll stop sharing my screen and I'll try to find that out and I'll share it to you right away. Meanwhile, any other question is there? I can take that. So, sorry? Any other question is there? I can take that. No, for me, no. Okay. Anyone else has any question? So Manish, one question here. Yeah. So this is regarding the seasonality, because like we are running that for a particular number of months, right? So if the seasonality like Diwali comes, that definitely the CPC would increase, right? So how would we cater to that? Yeah, so basically I'll tell you from my own experience. Meanwhile, I'll just first, I've got this. Just a moment. I'm sharing it on the chat first, then I'll tell you. So मैंने एक YouTube का लिंक शेयर किया है. This was my video for about 1.5 hours. उसमें पहले 30-35 मिनट में आपको इसका आंसर मिल जाएगा और अच्छा मिलेगा, because I'll have to collate my thoughts to answer you. यहाँ पे वो सारा जो है with the screenshots and all मैंने सब कुछ वो दिया था, तो that thing is already shared. So what happens is that usually whenever anything comes, as a sale वगैरह, चाहे दिवाली का हो या जैसे ये फ्रीडम सेल अभी गया था, सो फ्रीडम सेल में ना बहुत सारे पर्सेस खुल जाते हैं। तो मतलब पीपल आर लाइक क्रेजीली डिस्काउंटिंग द प्रोडक्ट्स ऑल्सो। जो डील्स वो क्रैक करते हैं अमेजोन के अकाउंट मैनेजर्स, हमने जो उनको 2 दिन के लिए बोला था उन्होंने 4 दिन के लिए चला दिया, 2 दिन तक कुछ चुप रहे, वो हमसे मिले ही नहीं, बात ही नहीं करी उन्होंने हमसे। सो ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स दे डू हैपन, बट बेसिकली द बिग ब्रांड सपोर्ट देम, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पे अगर वो सपोर्ट करते हैं तो पूरे साल जो है ना फिर अमेजोन से भी कुछ ना कुछ जो है उनको कैटेगरी मैनेजमेंट का थोड़ा सपोर्ट मिलता रहता है, विच इज ऑलवेज वेलकम, गिवन द काइंड ऑफ अमेजोन और फ्लिपकार्ट और एनीबडी बिग इन द सिस्टम। तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपको ना अपना ये तय करना है कि आप खुद कितने बड़े प्लेयर हैं। इफ यू आर वेरी बिग प्लेयर विद डीप पॉकेट्स, तो यू विल हैव टू, क्योंकि वहां पे ना जनरली अच्छे डिस्काउंट्स मिलते हैं। तो अच्छे डिस्काउंट अगर मिलेंगे, और सिर्फ अच्छे डिस्काउंट्स के अलावा जो है वो लोग अपने एडवर्टाइजिंग के भी, जो मैं बता रहा हूँ ना, जैसे वो पर्सेस खोल कर बैठे हुए हैं अपने, तो आप नोट करोगे कि ओवरऑल तो आपकी सेल बढ़ेगी, क्योंकि यूजर इंटरेस्ट तो आ ही रहा है। मतलब 3 टाइम्स से लेकर 5 टाइम्स तक सेल बढ़ जाती है, तो यूजर इंटरेस्ट तो आ ही रहा है। अब यूजर इंटरेस्ट आ रहा है पर वो आपका प्रोडक्ट थोड़ा उसको पीछे दिखता है, बट यूजर इतना ज्यादा आ रहा है कि आपकी सेल भी बढ़ जाएगी, बट हो सकता है उतनी ही नहीं बढ़े जितनी वो बढ़ सकती थी अगर आप थोड़ा और डीप डिस्काउंटिंग कर देते।
पर वो डीप डिस्काउंटिंग कितनी करोगे वो टोटली आपके ऊपर है। तो मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, पहले 3 साल में हमने कभी भी ये गेम खेली नहीं। रादर दिवाली के टाइम पर हम एड्स बंद करके बैठ जाते थे, क्योंकि हमने कहा कि भाई हम लोग जो है ना इन लोगों के साथ जीत नहीं सकते, क्योंकि काफ़ी जो थे जो ब्रांड्स थे, यू ऑल्सो नो हाउ इट हैपन्स, काफ़ी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज से आती हैं, दे आर हेविली डिस्काउंटेड, इतना एड्स चल रहा होता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब हमारे बजट ऐसे खत्म हो जाते थे 12 1 2 बजे तक। तो हमने वो करने ही छोड़ दिया, और हम प्राइसिंग भी नहीं दे पाते थे जिस हिसाब की वो बिल्कुल इतनी गंदी प्राइसिंग आती थी कि हम मैच ही नहीं कर सकते थे, हम सोचते भी नहीं थे दूर दूर तक भी, हम नहीं खेल रहे थे। फिर जैसे हमारी एक रोटेशन जब घूमनी शुरू हुई तो हमें लगा कि हाँ ठीक है, मतलब हम थोड़ा सा कर सकते हैं इसके अंदर। तो हमने जो है डिस्काउंटिंग भी देना शुरू किया और वो भी देना शुरू किया, उसमें भी डालना शुरू किया। बट हम अभी भी जो है ना इतना वो नहीं करके बेचते कि बिल्कुल जो है आप नेगेटिव करके बेच रहे हो, जैसे लोग एक्चुअली में नेगेटिव करके बेचते हैं काफी, हम नहीं करते। बट उसकी वजह से मैंने क्या देखा, हमारी सेल्स रैंक गिर जाती है प्रोडक्ट की, बिकॉज देर आर पीपल हु आर लाइक सेलिंग इट रियल थ्रो अवे प्राइसेस, इतना जबरदस्त ऐड कर रहे हैं। तो ये ना धीरे धीरे आपको अपनी एक पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी कि आपको चुप होकर बैठना है, थोड़ा बहुत कुछ करना है, या आपको अग्रेसिवली कुछ करना है। तो ये टोटली आपके बजट्स के ऊपर है। Thanks, Manish. Thanks for that. Have I been able to answer? Because it was a little objective answer, subjective answer. It was not very objective answer, but I didn't have a better answer to give it to this. Yeah, that answers it. My only Yeah. worry is like when we are saying this staggered approach, where we are saying we will start incrementally and increase the budget. तो उस month में जाके effectively it kind of levels up, क्योंकि आप कितना spend कर रहे हो but you don't get that much return. नहीं, staggered up approach मैंने new product launches की बात करी थी। हाँ. I But I was this you will hit that month sometime. Let's say if you launch in August, right? तो दूसरे तीसरे महीने में जाके वो फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो जाएगा, तब आपको हाँ नहीं तब उस पचड़े में नहीं पड़ी है आप। डोंट फाइट विद देम, मतलब इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, मतलब आपका खर्चा हो जाएगा, आपकी सेल ज्यादा नहीं होगी अगर आप दूसरे तीसरे महीने ही प्रोडक्ट लॉन्च में है तो। ठीक है, थैंक यू, दैट मेक्स डोंट गेट इनटू दैट, मतलब दे विल बीट यू ब्लैक एंड ब्लू, बहुत पैसा खर्चा हो जाएगा, रिजल्ट ज्यादा नहीं आएगा। कूल, थैंक्स मनीष, थैंक्स फॉर दैट। एनी अदर क्वेरी? So there is one person, Vic. I have shared the same on the group chat, the YouTube. Abhishek, have you been able to take that out now? Copy the link. Sorry. Have you been able to see that link? I didn't open it right now. I thought I'll see it later. But you have been able to copy it, right? I haven't seen. I haven't tried it. I'll try it. I have sent it on the chat. You can have a look. किसमें भेजे हो आप? Chat पे भेजा On the chat. Okay. on the Zoom chat itself. Okay. I'll copy the link. Yeah. Okay. So in case we don't have any other question, I think we can close the session for today. And thanks for being there. It was highly technical. Hope I've been able to do justice. And we'll meet again. Thank you very much, all. Thank you very much, Manish. Really. Bye.